Hello everyone. Now in this section of video, which is the continuation of the previous video section, which is based on the description of finite state machine and what are the tuples, we can say the formal definition of finite state machine, how we can define the finite state machine formally with the help of 6 tuples. Now in this section, we are moving forward with the type of finite state machine called Murray machine. Now, Murray machine is actually one of the kind of finite state machine which represents the abstract model of a sequential circuit. Now, what the definition of Murray machine says, first we take a look over the definition of finite Murray machine. What this definition says, according to the definition, we can say in Murray machine, output depending upon that means the output which is generated by this machine is depending upon the present state only. Okay, which means the output values are synchronous in nature with the state transitions which is triggered by the edge of clock. Okay, so you can see here the definition, what definition of Murray machine says. In Murray machine, this is the we can say the point that we need to remember. In Murray machine, outputs depend upon only the present state. Okay, so Murray machine एक ऐसी मशीन है, ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो ये कहता है कि जो आउटपुट वैल्यूज़ होंगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर ही डिपेंड करेंगी, विच मीन्स द आउटपुट वैल्यूज़ आर synchronous in nature with the state transitions are triggered by the edge of clock. Okay, because we are using the flip-flops as the memory element in any kind of finite state machine, whether it is a Murray machine or we can say the Mealy machine. So in both of these machines we are using flip-flops as the memory elements. So the machines are synchronous in nature as per the transitions which is triggered by the edge of clock, यानी कि clock की edge के through जो triggered होगा. Okay, now what will be the block diagram of a Mealy machine? So you can say the block diagram of Mealy machine we can draw here. We have the combinational logic. Okay, then
we have the memory element, which is actually a kind of flip-flop. Then again we have a combinational logic, then we will get the output value. Okay, so through this we are getting the output value, which is the function of t. Now we are giving the input to the combination logic, just like this. Then we'll rate the output of this combination logic. Okay, let me say it is qt, which is nothing but the next state. Then after getting the output from the memory element, you can say that we are passing that output again back to the combination logic. Okay, and this is known as the present state. We have the clock input. So this is what we call the block diagram that represents the working of a Moore machine. We have the combinational logic जहाँ हम input देते हैं, इसके बाद इस combinational logic यानी कि जो हम logic gates यूज़ करते हैं, उन logic gates के through, उस combinational logic के through जो हमें output मिलता है वो हमारे लिए next state होती है. Okay, and then we are providing it to the memory element यानी कि फ्लिप फ्लॉप. और जब हम फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल देते हैं तो उसके बाद फिर हमें जो है प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम या प्रेजेंट स्टेट ऑफ दैट मॉडल ये हमें मिलती है. और देन इसी को हम एज अ इनपुट वापस कॉम्बिनेशनल लॉजिक में जो है वापस प्रोवाइड करा देते हैं एज अ इनपुट विद द नेक्स्ट इनपुट वैल्यू. ओके, एंड देन ये जो प्रेजेंट स्टेट हमें मिली है, इस प्रेजेंट स्टेट को अगेन हम एक कॉम्बिनेशन लॉजिक में पास करते हैं और उस कॉम्बिनेशन लॉजिक के थ्रू हम उसको प्रोसेस करके हम जो है यहाँ फाइनल आउटपुट मिलता है. सो वी कैन से दैट दिस इज द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर अ Moore machine. Now we are taking an example here of a circuit for the Moore machine. Now you can see we have a circuit. हमने एग्जाम्पल समझने के लिए एक सर्किट लिया है. इस सर्किट में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक टी फ्लिप फ्लॉप है, दूसरा ये टी फ्लिप फ्लॉप है, ये एक एंड गेट है. ओके, ये भी एक एंड गेट है. ओके, और यहाँ हम एक इनपुट दे रहे हैं जिसे हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ हमें जो y मिल रहा है ये हमारा आउटपुट है. अब इस सर्किट के अंदर हम ये इनपुट x दे रहे हैं. ओके, और यहाँ आप देख सकते हैं इस एंड गेट के अंदर हमें यहाँ इस टी फ्लिप फ्लॉप से जो आउटपुट मिल रहा है, इस टी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हम वापस एंड गेट में दे रहे हैं. अब ये एक Moore मशीन का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, आप ध्यान से देखिएगा. जो डायग्राम अभी इससे पहले हमने ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया था. व्हाट दिस ब्लॉक डायग्राम सेज, वी हैव अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, वी हैव अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक,
उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, वो हमारे लिए नेक्स्ट स्टेट की तरह होता है। फिर हम उस आउटपुट को मेमोरी एलिमेंट यानी कि फ्लिप फ्लॉप में पास करते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट स्टेट मिलती है, फिर हम उसे कॉम्बिनेशन लॉजिक में पास करते हैं, तब हमें एक आउटपुट मिलता है। अब इसे आप कैसे समझ सकते हैं डेफिनेशन के थ्रू? हाउ वी कैन से दैट इन बुरे मशीन आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट स्टेट ओनली। यहाँ आप देखेंगे आपने इनपुट दिया और ये जो आपको आउटपुट मिल रहा है ये प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। ओके, जबकि मिले मशीन के अंदर जो आउटपुट हमें मिलता है वो आउटपुट प्रेजेंट स्टेट और जो इनपुट हम देते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। ओके, सो आउटपुट जो है अगर डायरेक्टली इनपुट वैल्यू और प्रेजेंट स्टेट दोनों पर डिपेंड कर रहा हो तो वो मिले मशीन रिप्रेजेंटेशन होता है, और अगर आउटपुट जो है वो डायरेक्टली जो है वो प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड कर रहा है तो ये हम मूरे मशीन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी ब्लॉक डायग्राम को हम यहाँ समझते हैं कि ब्लॉक डायग्राम कैसे जो है इस सर्किट डायग्राम के अंदर हम देखेंगे। नाउ वी कैन सी हियर दिस इज द आउटपुट। ओके, नाउ आई एम कंपेयरिंग इट विथ this block diagram. You can see this is the output जो हमें यहाँ मिल रहा था इस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होगी? ये हमारे लिए कॉम्बिनेशनल लॉजिक हो गया। ऑब्वियसली बात है, वी आर यूजिंग गेट। दिस इज द मेमोरी एलिमेंट, ये हमारा मेमोरी एलिमेंट है। ओके, ये हमारा मेमोरी एलिमेंट है क्योंकि यहाँ फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ कर रहे हैं। इनसे जो हमें आउटपुट मिल रहा है ये हमारी जो है ये नेक्स्ट स्टेट है। नेक्स्ट स्टेट मतलब ए और बी। ये जो आउटपुट्स हमें इन फ्लिप फ्लॉप से मिल रहे हैं दीज आर नेक्स्ट स्टेट्स कॉल्ड ए एंड बी। ओके, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है, सॉरी प्रेजेंट स्टेट है। ये हमारी प्रेजेंट स्टेट्स हैं जो कि हमें मेमोरी एलिमेंट के थ्रू यहाँ से आउटपुट के फॉर्म में मिल रही हैं। ओके, और फिर इन मेमोरी एलिमेंट्स में जो हमें इनपुट आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। दीज आर द इनपुट्स टू द मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, जिसमें से ये तो क्लॉक है, एक क्लॉक साइकिल है। इसके अलावा जो इनपुट हमें यहाँ मिल रहा है वो इनपुट हमें ये देख सकते हैं आप, इससे कंपेयर कीजिएगा। दिस इज़ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक, ये वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। ओके, नाउ ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक है और ये जो है ये हमारा इनपुट है। सो वी कैन कंपेयर दिस सर्किट डायग्राम विद द ब्लॉक डायग्राम। वी हैव द इनपुट, वी हैव द इनपुट, we have the logic, combination logic, then we have the memory element. This is what we call the memory element. memory element में input हमें कहाँ से मिल रहा है? इस combination logic से जो output हुआ है वो हमें जो है यहाँ as in the form of next state, यहाँ जो output आ रहा है ये हमारे लिए नेक्स्ट स्टेट है। ये जो इस कॉम्बिनेशनल लॉजिक से जो हमें आउटपुट मिल रहा है यानी कि ये जो इनपुट यहाँ जा रहा है इस फ्लिप फ्लॉप में और इस फ्लिप फ्लॉप में, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। ओके, एंड देन वी कैन से दीज आर द प्रेजेंट स्टेट्स और दिस इज व्हाट वी कॉल द मेमोरी एलिमेंट। ओके, एंड वी गेट द कॉम्बिनेशनल लॉजिक एंड आफ्टर दिस वी आर गेटिंग द आउटपुट वैल्यूज। ओके, सो ये हमारा सर्किट है। अब इस सर्किट को हमें जो है एनालाइज करना है और एनालिसिस के लिए हम मूरे मशीन का जो है डिज़ाइन बनाएंगे इसमें। नाउ अब बिफोर स्टार्टिंग विद द डिस्क्रिप्शन और द स्टेट इक्वेशन एंड द स्टेट टेबल रिप्रेजेंटेशन, हम पहले देख लेते हैं टी फ्लिप फ्लॉप से, क्योंकि हम एंड गेट के बारे में तो हम जानते हैं एंड गेट का जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है वो कैसा होता है, जबकि जो टी फ्लिप फ्लॉप है ये हमारे लिए जो है हम फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने डिजिटल में इसको पढ़ा था, बट फॉर नाउ for this we're taking the T flip flop. So the representation of T flip flop as we are having the inputs, the clock and the input T, it will generate the output, let's say Qn or Q and Q dash. Okay, ये जनरली जो है टी फ्लिप फ्लॉप का रिप्रेजेंटेशन होता है, ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करें, हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ
the T flip flop. Okay. Now characteristic table of T flip flop is, we have the input values, क्योंकि हम यहाँ एक ही इनपुट दे सकते हैं तो या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा. So in that case you get the output of this T flip flop as the function of T, which is based on the previous values. Okay. Now what it says that if the value is 0, if the input to the T flip flop is 0, it will generate the new output as mentioned in the, or we get in the previous value. Okay. So जो हमें output मिलेगा यहाँ पर ये वही होगा, no change. That means we can say no change. Okay. और अगर हम 1 देते हैं इनपुट में तो हमें यहाँ मिलेगा कॉम्प्लीमेंट. नो चेंज मीन्स जो हमें प्रीवियस आउटपुट मिला था वही हमें आउटपुट मिलेगा. ओके. ये जो न्यू आउटपुट है वो क्या होगा, जो प्रीवियस था नो चेंज. अगर 1 है तो जो आउटपुट हमें नेक्स्ट आउटपुट मिलने वाला है, t+1 मीन्स द नेक्स्ट आउटपुट हमें मिलने वाला है वो कॉम्प्लीमेंट होगा किसका, जो हमें प्रीवियस आउटपुट मिला था उसका. ओके. नाउ ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है अभी हमें बहुत हेल्प करने वाली है आगे.